Hello everyone, please welcome to Raghu and Prerna's house. This penthouse has been designed by Skyline Spaces. Let's take a walk through. So this is our living hall, and we didn't want too much lighting and too much design, so we kept it very simple. And we love the European theme. So this entire house is designed in view looking at European style of interiors. So Skyline Spaces were kind enough to help us with this minimalistic design. So I still remember the first time when we spoke to Imran, the way he explained everything, we really liked it actually. And we really wanted the house to be very simple and beautiful. That was the only thing which we told Imran about, and the outcome, we really liked it. So I travel a lot and I don't have much time to come and visit the site very often. But when I met other interiors, I didn't get a very good vibe, or neither I could got that trust. But with Imran, we did find the trust, and I must say it's a great thing that we went with Skyline Spaces. We wanted the house to be very elegant, and we have very specific requirement in terms of kitchen, study room and bedrooms. That includes the toilets, where washrooms, we wanted it to be very bright when it comes to lighting, and we wanted to do everything custom because the default ones were not really that great. I'm the kind of a person who spends a lot of time at home, working from home, so I needed a dedicated study room with all the bookshelves as a small library and so on. And the kitchen, we wanted it very minimalistic with no loft and very exclusive design, and we love it the way it has come out right now. This was done quite very close to how it was shown to us. And Raghu travels a lot actually, and I would say that 80% of the time he's outside. So like even I work, so I couldn't come every time for supervision and all, and that much of supervision was not required actually. Whatever queries, whatever issues we had, we just give a call to Imran, and he was personally there in the location actually, so we had that support. We definitely recommend Skyline Spaces to other home buyers because it's quite affordable and very reliable and trustworthy. I would highly recommend you to just have a call to Skyline Spaces. Thank you, Skyline Spaces. Hello everyone, welcome to this beautiful penthouse in Purva Palm Beach designed by Skyline Spaces. आपने सुना ही होगा कि जैसे ओनर्स ने बताया कि उनका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थे कि वो चूँकि बहुत ट्रैवल करते हैं, उनको यूरोपियन थीम चाहिए था, तो हमने इस घर को वो सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए इस डिज़ाइन थीम को मैच किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सा फोयर जो कि एलोंगेटेड वॉल लिविंग तक जा रहा है, इसमें हमने इसको कैसे डिज़ाइन किया है। वहाँ पे एक मिरर दिया है और फिर कंसोल टेबल भी है, और फिर वॉल मोल्ड्स को अच्छे खासे तरीके से हमने यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया है। जब हम ये डिज़ाइन कर रहे थे तो हमारे चैलेंजेस ये थे कि हम इसको कैसे एक एलोंगेटेड वे में दिखाएं, और फिर वॉल मोल्ड्स का साइज़ कैसे रहें, क्योंकि हमें एक सोफ़े के पीछे वॉल आर्ट भी चाहिए था। तो जैसे हम वहाँ से एंट्रेंस में से आते हैं लिविंग रूम में, और फिर लिविंग रूम में भी हमें बहुत ही मिनिमलिस्टिक लाइटिंग चाहिए थी, तो हमने बहुत सी सिंपल फॉल सीलिंग रखी और फिर वार्म लाइटिंग को यहाँ पे भी इस्तेमाल किया। जो कोव है उसको वार्म किया है, और फिर जितने स्पॉटलाइट्स आपको देख रहे हैं वो सब ब्राइट लाइट्स हैं। और यहाँ पे हमने एक शैंडिलियर को प्लान किया था जो कि इस थीम को मैच करे। और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वॉल ट्रिमिंग बहुत ही काफ़ी अच्छा आया है एक एलोंगेटेड वे में। आप देख सकते हैं इसको हमने सिर्फ वॉल ट्रिमिंग के साथ ये भी एक रखा था कि पूरे घर में ग्रे एंड वाइट की थीम को मैच करके चलना है, तो इस वॉल को हमने ग्रे में पेंट कर लिया, तो काफ़ी अच्छा आया। अब उसके बाद हमारा टीवी यूनिट का डिज़ाइन था। यहाँ पर भी हमने बहुत सारे डिज़ाइंस ट्राई किए थे। ये एक जो वॉल है वो 7 फीट की मिलती है, और फिर बहुत सारे डिज़ाइन हमने यहाँ पे भी वॉल मोल्ड का ट्राई किया था, बट वो बड़ी वाली टीवी एक साइड एंगल में फिट नहीं हो रही थी, तो हमने यहाँ पे एक मिनिमलिस्टिक बेस यूनिट्स डिज़ाइन कर लिया जो कि वुड फिनिश में है, प्लस उसके साथ हमने यहाँ पे मार्बल फिनिश का लैमिनेट यूज़ किया
जो कि वाइट एंड ग्रे के साथ मैच हो रहा है। तो पूरे सारे ये जो इतना एरिया है, लिविंग रूम, एंट्रेंस और डाइनिंग, और फिर पूरे घर में हमने ग्रे एंड वाइट को मैच करके ही रखा है। तो ये मार्बल फिनिश का भी उसके साथ बहुत ही अच्छा गया। फिर इसके साथ हमने यहाँ पे वॉल बीडिंग्स को देखे कुछ ऐसी लाइट फिटिंग्स यूज़ की है जो कि लाइट इस पे ऊपर पास हो रहा है। तो डाइनिंग भी इसी एरिया से मिलता जुलता है। ये एक क्रॉकरी इनके पास बहुत पहले से था जो कि इन्होंने बाहर से ख़रीदा था, और इसमें एनग्रेव डिज़ाइंस थे, तो ये इसको रिटेन करना चाह रहे थे हम लोग। तो इसको रखते हुए फिर ये वुडन फिनिश का कलर है। तब हमने वॉल की डाइनिंग की जो वॉल थी यहाँ पर भी हमने बहुत सारा कुछ ऐसे डिज़ाइन नहीं किया, बल्कि इसको भी मिनिमलिस्टिक रख के फिर वहाँ पे भी हमने कुछ लाइट्स वगैरह और वॉल आर्ट्स लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत जा रहा है। और फिर इसी डाइनिंग एरिया में हम लोगों को ईस्ट फेसिंग की तरफ से, जैसे हर एक का एक वास्तु प्रेफरेंस होता है मंदिर का, तो डाइनिंग में ही ये कस्टमाइज्ड मंदिर भी यहाँ पे आ गया है। तो आइए चलते हैं किचन में। किचन में भी हमने ग्रे एंड वाइट थीम को मैच करके रखा है और यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग की है, आप देख सकते हैं। और ये जितना भी किचन बना है ये आपको देख सकते हैं पीयू फिनिश शटर्स के साथ बना हुआ है। पीयू फिनिश वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जा रहा था, और उसको उस ब्यूटी को एनहांस करने के लिए हमने इस पे गोल्ड हैंडल्स यूज़ कर लिए हैं। ये दो फ्रेंच स्टाइल कटआउट के CNC में हमने डिज़ाइन कर लिए, तो 2 ग्लास डोर्स भी आ गए। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम लोगों को डिश वॉशर इसी किचन में फिट करना था। तो इनका फ्री स्टैंडिंग डिश वॉशर था, और हम लोगों को इस किचन की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, जो कि थीम के साथ बहुत ही अच्छे मैच कर रही थी। जैसे आप जानते हैं कि जितनी भी यूरोपियन किचन्स होती है उनमें काफ़ी हाइट थोड़ा 3 फीट का स्टैंडर्ड होता है, और फिर वॉल यूनिट का भी हाइट काफ़ी बड़ा होता है। तो हाइट की वजह से भी इस किचन की जो ब्यूटी है वो हाइट बढ़ाने के वजह से, शटर्स की हाइट बढ़ने की वजह से, और फिर गोल्डन हैंडल्स आने की वजह से ये बहुत ही परफेक्ट आ गया है। आइए आपको यहाँ के इस घर के पेंट हाउस के मास्टर बेडरूम में ले चलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, और एक्चुअली में इसका बेड पोजीशन जो था बिल्डर की तरफ से यहाँ इस वॉल में था। हमने इसकी पोजीशनिंग चेंज की, और एक बड़ा वॉल हमें चाहिए था क्योंकि वॉल मोल्ड्स बड़े वॉल में काफ़ी अच्छे आ रहे थे, और फिर हम लोगों को कुछ अच्छे से वार्डरोब स्पेस भी चाहिए था। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि इसका भी थीम जो है वो सेम है, सिमिलर है। यूरोपियन डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए हमने इस वॉल में वॉल मोल्ड्स को यूज़ किए हैं, और इसको भी ग्रे कलर पेंट में पेंट किया है। काफ़ी अच्छे से इसका आउटकम आया है। और फिर यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी खासी बड़ी स्टडी चाहिए था और कुछ स्टोरेजेस चाहिए थे, तो हमने यहाँ पे अच्छे खासे ड्रॉयर्स, वाइड ड्रॉयर्स प्लान किए, और फिर यहाँ पे बैठ के काम करने के लिए भी स्टडी किया। लूवर्स इस्तेमाल किए हैं, फ्लूटेड पैनल, प्लस टीवी लगाने के लिए एक पैनल दिया, और उसके पीछे से कोव लाइटिंग, वार्म लाइटिंग। डिज़ाइन फैक्टर को मैच करने के लिए हम चाह रहे थे कि कुछ इसमें वुड, वाइट एंड प्लस ग्रे हो, तो ये फैक्टर हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया। डिज़ाइन बनने के बाद में ये काफ़ी अच्छे से आया है। और फिर यहाँ पे डोर्स भी, ये भी जितना आप देख रहे हैं, वार्डरोब्स हो या फिर ड्रॉयर्स हो, इसके सारे शटर्स जो हैं वो CNC कट होने के बाद में PU पेंट किए गए हैं इस थीम को मैच करने के लिए। और चूँकि ये ग्रे वार्डरोब्स आ रहे थे, वहाँ पे हमने किचन में गोल्ड हैंडल्स ऐड किए थे। यहाँ पे हम लोगों को ब्लैक वाला फील बहुत अच्छा आ रहा था, तो इस ग्रे वाले वार्डरोब्स पे हमने ब्लैक हैंडल्स मैच किए, तो ये भी बहुत अच्छे से उठ के आ रहा है। तो ये उनका किड्स बेडरूम है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वो वाला ग्रे जो मास्टर बेडरूम में था वो थोड़ा सा डार्क था। इस रूम में थोड़ा सा लाइट कम होने की वजह से हमने यहाँ पे लाइटर ग्रे को यूज़ किया है। और फिर ये भी PU फिनिश शटर्स है, सेम यूरोपियन थीम को मैच करते हुए छोटा सा एक स्टडी बनाया हुआ है। और फिर इसमें भी स्विंग डोर वार्डरोब है, और इसको मैच करने के लिए हमने क्रोम हैंडल्स दिए हैं। यहाँ पे भी फॉल सीलिंग हुई है, और बहुत मिनिमलिस्टिक इसमें भी लाइटिंग यूज़ की है। पर इसमें सबसे खूबसूरत जगह है ये इसका वॉल। यहाँ पे भी हम चाह रहे थे कि कुछ वॉल मोल्ड्स हो, बट वही डिज़ाइन काफ़ी जगह रिपीट हो रहा था, तो हमने कुछ और ट्राई किया। यहाँ आप ये बहुत ही ब्यूटीफुल से
वॉल बीडिंग्स हो गई और फिर उस पर पेंट हमने किया तो इसका आउटकम काफ़ी अच्छा आ गया. So Raghu had a very specific requirement of the work area to be very elegant, and he wanted a spacious study to be designed for himself, because he spends a lot of time here working, and as he said that 80% of his work happens from his study. So this is what we have designed. And how do you feel about this study, Raghu? You can tell us something about your study. So I really like it. I like the design, the concept, and this is something which I wanted. I mean, pretty much like this, a very nice, comfortable cabin with some trophy cases, some books, and I still have to fill up a lot of books from my other place. Still there. You still have time to do that. I know. You just shifted. But when I saw the initial design, I really liked it. But like I said, mentioned this before, but from a design to a real sit here and experience is something which from imagination to reality. Yes. Okay, so that is what you even if you look at a experienced 3D design, it's not something, okay, will it come like this? Yes. Because there will be too much lighting and it's all controlled. Correct. But then I really liked the way it is now. So Okay. thank you, Imran. Welcome. So even here we have had the wooden flooring and we had to match the wooden concept as well. So यहाँ पे हमने टेबल टॉप जो है वो वुडन फिनिश का लैमिनेट दिया है, और फिर जो आप शटर्स देखते हैं वो भी पीओ फिनिश के हैं, और उसमें भी हमने यूरोपियन थीम को मैच करके इसको डिज़ाइन किया है. काफ़ी सारे शेल्फ्स यहाँ पे कस्टमाइज करके हमने बनाए ताकि यूटिलाइजेशन भी उसका अच्छे खासे से हो, और बुक की हाइट वगैरह सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने हाइट को इस पे डिज़ाइन किया था ताकि काफ़ी कोई बड़ी चीज़ भी हो तो यहाँ पे फिट हो जाए.